हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न तक अपन ने जो इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट पढ़ा है दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स कि इलेक्ट्रिसिटी की वो ब्रांच जिसमें हम स्टेशनरी चार्ज की स्टडी करते हैं। इन दिस केस चार्ज इज नॉट मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, चार्ज रिमेन्स स्टेशनरी एट द सेम प्लेस एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड इफेक्ट्स ऑफ द स्टेशनरी चार्ज, वो अपन ने स्टडी किया था लास्ट टर्न पे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो लेने जा रहे हैं वो भी उसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। The field in which any test charge or any charge experiences the force, either attractive force or repulsive force। देखिए, फिजिक्स में हम बहुत सारी स्टडी को यदि हम कॉमन तरीके से समझें तो फिजिक्स की स्टडी काफ़ी कम हो जाती है। एक तरीके से हमको उसमें कम अपनी एनर्जी लगानी पड़ेगी। जैसे हम बोलें कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का मीनिंग क्या है? A field in which any mass experiences the gravitational force। मास, किसी भी मास पर उस फील्ड के अंदर यदि वो होगा तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। That field is called gravitational field। Same as electric field। Electric field is generated due to the charge। ये अपने प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में अपन लोगों ने पढ़ा था कि स्टेशनरी चार्ज क्रिएट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। तो किसी भी स्टेशनरी चार्ज के आसपास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड जब होता है तो उसको हम डिफाइन कैसे करें, कैसे हमको पता लगेगा कि देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो वहां पर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आए जिसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल हो, तो टेस्ट चार्ज हम उसको बोलते हैं। टेस्ट चार्ज शुड बी वेरी वेरी लेस एंड इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर एज ए जीरो। तो इस चार्ज के ऊपर उस फील्ड में कितना फोर्स लग रहा है, आइदर अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स। तो उस यदि फोर्स लगता है तो उस फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। द फील्ड इन विच एनी टेस्ट चार्ज experiences the force is called electric field। Is it clear? किसी भी फील्ड में यदि हम कोई भी टेस्ट चार्ज रखें, कोई फील्ड है, यदि वहां पर कोई भी रखा हुआ टेस्ट चार्ज यदि कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता है, आइदर रिपल्सिव फोर्स और मे बी अट्रैक्टिव फोर्स, तो हम ये कहेंगे कि दैट फील्ड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अबव डेफिनेशन इज क्वालिटेटिव डेफिनेशन एंड नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज क्वांटिटेटिव। Let any test charge Q0 is very very small because its electric field consider as a zero or negligible. Let any test charge Q0 is placed in any electric field E vector and Q0 experiences the force F vector, then electric field intensity. Here E vector is called electric field intensity. Electric field E vector means it is electric field intensity. E vector will be equal to F vector upon Q0. Here E vector is called electric field intensity. So we can say the electric field intensity is the ratio of force experienced by the charge and the test charge,
and the giving charge in an electric field. So according to the formula, we can say the electric field intensity will be equal to the ratio of force and test charge which is placed any electric field. If Q0 equal to 1 coulomb, then electric field intensity will be equal to the force. So we can write the electric field intensity is equal to the force experienced by the unit positive charge in any electric field. So electric field intensity will be equal to the force experiences by a unit positive charge in any electric field. Unit of electric field first, because E is equal to F by Q, so unit will be Newton upon Coulomb. Second, E vector equal to minus dV by dr, where dV is change in potential and dr is the distance or change in distance. For example, in electric capacitor there are two plates. One plate is positively charged, amount of charge remains the same, but nature will be the opposite, and distance between the plates is d and potential difference is V. Then electric field inside the plate, electric field intensity inside the plate will be V by d, where d is the distance between plates and V is potential difference between two plates. So electric field intensity between these plates will be E equal to V by d. Third point, electric field intensity is a vector quantity and its direction remains in the direction of force experienced by the test charge. So it is denoted by the potential, denoted by the gradient of V. E vector is also represented by minus del by del x I cap
प्लस डेल वाई जे कैप डेल जेड कैप इंटू वी। ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली हायर क्लासेस में हम इसको यूज करते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि फॉर्मूला किस टाइप का है। डिफरेंशिएशन जब आपको आने लगेगा तो ये फॉर्मूला यूज होता है, बट इसमें जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले हैं वो अपन ने इन्वॉल्व कर दिए हैं। क्या क्या फॉर्मूले अपन कंसीडर कर सकते हैं। One is E is equal to F by Q, and second is E is equal to V by d. V is the potential difference between two plates and d is the distance between the plate, and third is E vector equal to minus del by del x I cap plus del by del y j cap plus del by del z k cap into V. V is again potential difference. इस पर हम अभी थर्ड जो फॉर्मूला है उस पर एग्जाम्पल नहीं लेंगे क्योंकि ये इस लेवल में नहीं आएगा। ये 11th लेवल में हम इसको क्लियर करते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। There are two types. One is homogeneous electric field, or equal electric field. For example, electric field between capacitor, between parallel plate capacitor field intensity remains the same at each and every point in between the parallel plate capacitor, because electric field is directional and its direction remains from positive to negative plate, and number of lines of force remains equal in equal area in between the parallel plates. नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में भी आपको आइडिया नहीं दिया है। एक्चुअली दोनों में से हम किसी चीज को एक पहले बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बता के फिर हम पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में आइडिया दें। एक्चुअली जो लाइंस ऑफ फील्ड इंटेंसिटी को हम लाइंस ऑफ फोर्स से भी डिफाइन करते हैं। जैसे हम यहाँ पर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बना लें, and direction of electric field remains from positive to negative. These are the lines of force. पॉजिटिव चार्ज से लाइंस ऑफ फोर्स जो आउटगोइंग होती है ऑलवेज, एंड नेगेटिव चार्ज में इनकमिंग होती है। लाइंस ऑफ फोर्स का यदि हम यहाँ पर देखें कि पर यूनिट एरिया द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ force passes through the area remains the same. So we can say the electric field intensity remains the same in between the two plates or parallel plate capacitor. तो इसके बीच में जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होमोजीनियस होगी। और सेकंड इज नॉन होमोजीनियस और अनइवन इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों वर्ड हम यूज कर सकते हैं, अनइवन और if the electric field intensity remains different at point to point, किसी भी दो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जिस फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफरेंट होती है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं कि नॉन होमोजीनियस और अनइवन इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे हम कोई चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज हम ले लेते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रखा है, मान लो पॉजिटिव चार्ज के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो लाइंस ऑफ फोर्स उससे बाहर की तरफ जाएगी, पॉजिटिव चार्ज से आउटगोइंग जाती है लाइंस ऑफ फोर्स।
स्ट्रेट पे जाएगी, तो इसमें जैसे जैसे लाइंस ऑफ फोर्स दूर की तरफ जा रही है उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। इट मीन्स कि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स passes through per unit area does not remains the same, do not remain the same. So we can say the electric field is uneven due to the point charge. उसके आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा कि लाइंस ऑफ फोर्स की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है। तो किसी भी पर यूनिट एरिया से जितनी लाइंस ऑफ फोर्स पास थ्रू होती है उनकी क्वांटिटी कम होती जा रही है। इट मीन्स कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। जैसे जैसे हम बोले कि पास में जब हम देखते हैं कि सेम एरिया में, जैसे हम कोई यहाँ पर ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्स बना के उसको ज़्यादा ठीक से इंडिकेट कर सकते हैं। कोई यूनिट एरिया ले लिया हमने कि भाई इतना ये हमारा यूनिट एरिया है। इसको जब हम पास रखेंगे तो इसमें से 4 लाइंस ऑफ फोर्स पास थ्रू हो रही है। सेम एरिया को जब हम यहाँ पर लाते हैं तो केवल 2 ही लाइंस ऑफ फोर्स पास थ्रू हो रही है। इट मीन्स जैसे जैसे हम पॉइंट चार्ज से दूर की तरफ जा रहे हैं लाइंस ऑफ फोर्स जो पास थ्रू हो रही है पर यूनिट एरिया वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। इट मीन्स कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। एंड डायरेक्शन इज ऑल्सो डिफरेंट। लाइंस ऑफ फोर्स का हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इट इज डायरेक्शनल। तो एक चीज हम इसमें हम कर सकते हैं कि पॉइंट चार्ज के आसपास सेम डिस्टेंस पर इंटेंसिटी सेम होती है। फर्स्ट पॉइंट, एट ए सेम डिस्टेंस और रेडियल डिस्टेंस, कोई रेडियस ले लें हम, कोई स्फेरिकल एरिया ले लें हम सेम रेडियस का, इंटेंसिटी remains the same but direction of electric field, direction of electric lines of force remains different. So we can say the magnitude of the electric field remains the same at the radial distance from the point charge, while the direction remains different. So electric field intensity does not remain the same because it is vector quantity and जब डिफरेंट डायरेक्शन में हम इसको देखते हैं तो डायरेक्शन चेंज होते ही फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं कि इट इज नॉट इक्वल, इट इज नॉट सेम फॉर द अदर पॉइंट्स एट द अदर पॉइंट्स। तो हम यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्वांटिटी में तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस पे जा रहे हैं, सेंटर पॉइंट से जैसे जैसे डिस्टेंस पे जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती है। लेकिन रेडियल डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन फिर भी अलग है। इसलिए हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं है, इट इज नॉट यूनिफॉर्म और होमोजेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड।